morning to all of you. So today we'll be discussing about virtual labs, but before I go into virtual labs, I'll just go ahead and share with all of you the first of all the NEP document. From there, we'll build upon the context on why we are moving towards virtual labs, right? So let me just go ahead and share my screen, and we look at the NEP document first. Right. So this is the National Education Policy document in front of you. If we go ahead and search virtual in this document, right? So there will be 6 instances. First will be virtual classes, like the ones which is going on right now, and the ones which we were taking in the times of pandemic. So virtual classes we are already doing, right? Then virtual museums, virtual e-museums can be realized with the help of VR technology that we gave you a brief introduction into on Tuesday, right? So that is the concept of virtual museum, e-museums. Then again, it's virtual reality, right? Virtual reality के concept के साथ how we are going to enhance the teaching learning process, and then again virtual reality. Then finally we have the term virtual labs. So this is a very important point in the national education policy, wherein the Ministry of Education is saying that existing e-learning platforms like Diksha is basically an app for school level students. एक बार हम उसको अभी interface check कर लेंगे, because some of the experiments जो higher +1 +2 में है, sometimes they can be utilized in the polytechnic curriculum also. Then Swayam, of course you have gone into Swayam कि कैसे स्वयं courses develop होते हैं, how you can access them. Then Swayam Prabha is actually an educational TV channel which broadcast educational content. So these are some of the platforms, and they can also be leveraged for creating virtual labs so that the students have equal access to the resources. So before moving on, I would just like all of you to focus. Swayam is run by CEC. And Okay, they are sir. into university system. They are more Okay. like general courses. Right. Though they have computer related courses, more general courses are there. Right, sir. So if we go into the ICT initiatives of Ministry of Education. Slow down. Yes, sir. Right. So let me just reiterate once again कि since we all know that virtual and digital की तरफ we are moving on, right? तो जो national mission on education through ICT है, उसके अंदर we have some ICT initiatives under the Ministry of Education. So if you can all see my screen, actually while preparing this lecture, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने भी first time ही learn करी. तो I hope it is useful for you, because इस website के I came across for the first time. So these are the various ICT initiatives of the Ministry of Education. तो इसके अंदर जो पहला आ रहा है स्वयं, उसके बारे में we have already discussed yesterday that online courses के through you are going to earn credits, and those credits could be used into your existing curriculum, right? Then Swayam Prabha, as I told, that is hosted by CEC, and then it is again you can view the educational content on TV. As far as the digital content access, journals and ebooks are concerned, we have the National Digital Library, we have the EPG Pathshala. EPG Pathshala, if you want all of you, I can just go ahead with each of the links one by one. Maybe at the end of the session or right now, if you want, you can just write to me in the chat box. EPG Pathshala pe we have a number of ebooks for courses up to PG. Then Shodh Ganga is again very important resource for people who want to carry on research, because यहाँ पे जितनी भी PhD thesis हैं, all are hosted on Shodh Ganga, right? And then eShodh Sindhu. This was something right, eShodh Sindhu, right? This was something new for me. Let me just go ahead on this link. Yeah. So basically, this इस website के अंदर just log in and become a member. कुछ journals ऐसी होती है, मतलब suppose your institute or your polytechnic is not having the access to certain publishers like IEEE or Elsewhere or Springer. So basically, this Government of India initiative, let me just check once again. Yeah, this is the only one, right? So this eShodh Sindhu is basically consisting of a number of e-journals, and if अगर आप इस शोध सिंधु के साथ अकाउंट बना के and then you go to these journals like IEEE or Springer or Elsewhere, तो जो आपको कंटेंट है वो कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिकॉज यू विल बी कमिंग ओपन एक्सेस भी, और जो पेड वाला है वो भी, जो पेड वाली आर्टिकल्स होती हैं जिसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, अगर आप इसके थ्रू यू गो इनटू देम, तो जो फीस पे करनी होती है इन सारे सब्सक्रिप्शन लाइसेंसेस की, वो जो है वो आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है. So this is again a e-resource requisition system particularly focused towards back. It is particularly focused towards e-journals, right? Thesis is on Shodh Ganga, PG Pathshala pe PG books hain, and then if you want another e-content on multiple disciplines, you can just go to National Digital Library,
right? There is a reason why I'm going through these ICT initiatives, because one of those ICT initiatives, if you look at this number 4 here, is virtual labs. So to enhance the context of why we are focusing on virtual labs these days, so इस वजह से we are going in this direction. So various ICT initiatives, ठीक है? Accelerated hands-on learning में we have the e-yantra. E-yantra is again a very interesting platform wherein ज़्यादातर if we have a look at the this is a robotics outreach program. तो e-yantra is basically जहाँ पे बहुत सारे collaborative programs होते हैं या बहुत सारे competitions होते हैं students के लिए, जहाँ से बच्चे अपनी जो robotic जो students होते हैं, they can they can launch their prototypes, or they can participate into the competition. ठीक है? So that is e-yantra. You get a hands-on experience on embedded systems. You even have the e-yantra labs for training in embedded systems with IIT Bombay. Then the second one is free and open source software for education, that is the FOSSEE. इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जहाँ जो फ्री एंड ओपन सोर्स होंगे, ठीक है? जैसे कि आपका Scilab है in side of the MATLAB, then we have Python, then we have eSIM. Almost all of them have been developed in India itself. बहुत सारे IITs ने develop किया है, जैसे कि CFD Toolbox है, OpenFOAM, DWSIM है, OS DAG है for steel structures. So ये जो आपके proprietary softwares होते हैं, उनके open source alternatives यहाँ पे available हैं on this free and open source software, right? So for education, तो यहाँ से आप directly download कर सकते हो. So this is just for you to be aware that the government of India is actually into this for a very long time and have been, बहुत sincerely they have been trying to incorporate ICT into education. Then spoken tutorial. Maybe we can stop here and just ask if anybody is aware of this spoken tutorials. Anybody in the online participants? Okay. Actually, this is a very old platform. Maybe somehow you missed, but it is a very it is one of the first initiatives of actually the government of India or the Ministry of Education. इसके अंदर जितने भी आपके open source software है ना, audio visual tutorials के साथ free service है. Everything that we are discussing here right now is a free service provided by the ministry or the different IITs and जिसने भी ये मतलब platform develop किया है. तो spoken tutorials, if I just go into one of the courses, let's say I want to learn, ये सारी languages यहाँ पे available है, ठीक है? So maybe I want to learn C and C++. तो इसमें मेरे पास 20 courses available, and what is the language that I want? स्पोकन ट्यूटोरियल का मतलब है कि वीडियो के साथ साथ आपको जो मतलब समझाया जा रहा है, जो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट है, जो ऑडियो है, जो बोला जा रहा है, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल होगी. लेट्स से आई वांट टू गो टू हिंदी, राइट? एंड देन आई वांट टू सर्च. तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोग्राम्स यू हैव इन हिंदी, ठीक है? लेट्स से आई वांट टू गो टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड आई जस्ट प्ले इट. इस स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, और उसके बाद नॉट ओनली दिस, दे हैव आल्सो इम्प्लीमेंटेड. ये यहाँ पे इन्होंने GCC कंपाइलर, बेसिकली ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम में प्रॉपर प्रैक्टिकल करके भी बता रहे हैं. आई थिंक इसके अंदर जो पेस है वो भी बहुत बहुत धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है, एंड हिंदी में भी बताया जा रहा है. तो दैट विल बी, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर रिगार्डिंग स्पोकन ट्यूटोरियल्स, ठीक है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीके में. नॉट ओनली वी हैव द ट्यूटोरियल्स, वी हैव सम क्वेश्चंस वेयर इन यू कैन डिस्कस, जस्ट लाइक स्टैक ओवरफ्लो या कोरा पे भी इफ यू आस्क सम क्वेश्चंस, सिमिलर वेबसाइट्स पे जहाँ पे आप क्वेश्चंस काइंड ऑफ अ फोर्थ क्वाड्रेंट टू स्वयं जो डिस्कशन फोरम था, तो यहाँ पे भी वो डिस्कशन फोरम एक तरीके से आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? सो दिस इज हाउ स्पोकन ट्यूटोरियल इज वर्किंग. वी हैव नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स. We if I go back to the home page, as you can see, बहुत सारे courses हैं यहाँ पे that you can learn, particularly towards spoken tutorial is particularly towards IT. As you can see, जितने भी courses यहाँ पे हैं, this is for IT. BioPython है, Blender है, Bash है, Arduino है, so this is for IT. Moving back to the ICT initiatives, तो free and open source initiatives हो गए, spoken tutorial हो गया, virtual labs पे I will come in the end because that is the main topic, उसके ऊपर हम बाद में discussion करेंगे. Then we have the National Internship Portal and the National Educational Alliance for Technology, which is the portal developed by the learners, जहाँ पे आप higher education जो weaker sections of the society है उनके लिए कुछ free seats available हैं. If you want to go through all of them, you can just go through for the main points.
Coming on to the tracking your progress, this is a new Vidwan portal for teachers who have just joined their respective engineering or polytechnic colleges. You can just go and register yourself on the Vidwan platform. It is similar to the Indian alternative of ResearchGate. Vidwan pe you can put in your publications and everything. So this is made in India and developed in India only. So this is the Vidwan portal. Then if I look into other, this is Shodh Shuddhi. So this is a plagiarism detection software. Usually we are using Turnitin. It is a foreign brand, मतलब foreign website है. But this is the in-house built plagiarism software. Vidwan portal कुछ इस तरीके से है. This is a, as you can see, it is a expert database and national researchers network. So यहाँ पे जाके if you log in and register yourself, there are login as expert or nodal officer as funding agencies. Multiple options है आपके पास यहाँ पे. You can just explore yourself कि किस तरीके से आपको अपने आप को यहाँ पे enroll करना है. So various subject categories में कितने विद्वान, as you can say in Hindi, how many academicians are there on this particular platform. You can just go through what are the advantages of putting yourself on Vidwan portal. ठीक है. कई बारी whenever sometimes ऐसे भी होता है कि when you are applying for a newer government job, तो वहाँ पे वो आपका विद्वान ID मांग लेते हैं. So it's just like IEEE का number होता है, membership number. So Vidwan also they ask. So it's a good practice if you are using these Government of India initiatives. Then Shodh Shuddhi again is a plagiarism detection software. I hope all of you know that whenever we are publishing some research papers or some any other, we are submitting some project proposal, या फिर in general भी हम students के assignment को plagiarism के लिए check कर रहे हैं और हमारे पास Turnitin जैसा महंगा software का license नहीं है, what we can do is we can use this free plagiarism detection software, which is the Shodh Shuddhi software. ठीक है. Okay, then we also have the Academic Bank of Credits. This is holds a very important place in NEP. Academic Bank of Credit is basically to store, transfer and credit redemption. Suppose कुछ एक courses मैंने एक जगह से किया और कुछ courses I want to move on to the another university और दूसरे college में मैं जा रही हूँ, तो मेरे वो जो credits मैंने पिछले institute में earn किए थे, पिछले semester में earn किए थे, या फिर मैंने कोई वो स्वयं से भी earn किए हैं, तो उसका जो proper पूरा जो database है, जो management है, वो आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ. ठीक है. So these were all the basically some of the Government of India ICT initiatives that I wanted to discuss with you. So the focus for today will be virtual labs. Okay. Before moving on to this Indian initiative of virtual labs, I would just like all of you to focus on this presentation. Since I have already discussed with you the ICT initiatives, I will just skip it. वर्चुअल लैब क्या है? बेसिकली वर्चुअल लैब कोई भी एक ऐसा वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग बेस्ड ऑन सिमुलेशन ऑफ रियल फिनोमेना. स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि इक्विपमेंट पे जब वो अपनी रीडिंग्स को ट्वीक कर रहा है, तो इसी तरीके से वो सिस्टम में भी ट्वीक करे और उसको कुछ रिजल्ट नजर आना चाहिए. ठीक है. इट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर अ टॉपिक बाय कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट सिनेरियोज. वैल्यूज को चेंज करते हैं बच्चे जब लैब में होते हैं, एंड टू पॉज एंड रीस्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर रिफ्लेक्शन एंड नोट टेकिंग, एंड टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस ओवर द इंटरनेट. Virtual labs are digital, of course. Virtual है तो digital है. Interactive activity simulations that take place in the physical laboratory. Virtual lab is actually going to simulate your equipment, your tool, procedure, test. Challenge क्या है कि जो आपका equipment है, suppose आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट है, कोई सर्किट है, उसको आपको डिजिटली कैसे कोड करके आपको उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर पुट करना है. नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस. जब हम वी लैब को एक्सप्लोर करेंगे, वी हैव सम ऑफ द वर्चुअल लैब्स बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी आल्सो. ठीक है. वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके अंदर वो कैसे स्टूडेंट्स को अवेयर कराने के लिए किस तरीके से करते हैं. एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यू जस्ट नीड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड अ सिस्टम टू कनेक्ट टू द वर्चुअल लैब्स. वर्चुअल लैब्स ऑफ कोर्स आर ऑपरेटेड ऑनलाइन. हाउ आर दे गोइंग टू वर्क? वो जो आपकी इक्विपमेंट है उसकी सिमुलेशन आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी वर्चुअल लैब के अंदर. रिजल्ट सिमुलेशन का अवेलेबल होना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो अलाउड टू स्टार्ट, स्टॉप एंड रीप्ले द एक्टिविटीज. इस पे आगे जाने से पहले मैं जस्ट एक नॉर्मल आपसे पूछना चाहूंगी, वर्चुअल लैब से हटके कि जो आपकी कन्वेंशनल लैब्स हैं उनमें आप एक्सपेरिमेंट कैसे करवाते हो? पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. हाउ डू वी कैरी ऑन द लैब्स इन एग्जिस्टिंग सिस्टम? फिजिकल सिस्टम में आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट करवाते हो? डू वी डायरेक्टली गो टू द लैब, और पहले हम थ्योरी की बात करते हैं? नेचुरली वी टॉक अबाउट द थ्योरी इन क्लास. ठीक है. उसके बाद कुछ उस एक्सपेरिमेंट का एम होता है ना. ठीक है. और अभी जो एनईपी के अंदर भी ये है, आई थिंक गाइडलाइंस में भी है मूक्स की में, कि एक प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि आपका इस कोर्स में भी हो रहा है. दैट पहले आपकी कितनी नॉलेज का लेवल है, फिर आपने
कोर्स अटेंड किया या आपने एक्सपेरिमेंट रन किया, एंड देन दी पोस्ट टेस्ट. So pre-test, conduct the experiment and the post-test. So basically, what is the aim of the experiment? What is the theory behind it? जो हम अपनी स्कूल एजुकेशन में जो फाइल्स बनाते थे उसमें ऐसे ही करते थे ना. What is the aim of the experiment? What is the objective or the apparatus required? Right, correct. And the experiment and the results. ठीक है. तो similarly उसी environment को हमें recreate करना है अपने virtual mode में. Online participants, you are not responding today. What happened? Difficult है? Is it fast? No, madam. That's going very good. Okay, okay, Ashwini. Yeah. So in the lab, basically, we are starting with giving the basic idea. If it is a software based, so we present them the algorithm and the expectations we do convey. Test their prior knowledge of the hands-on practice on, let's say, C, Python, like, and then thereafter, as you rightly said, post-test. That way the quizzes are also conducted. Yeah, Thank you. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So let's go to the presentation again. Yeah. So what are the benefits of using virtual labs? Top notch equipment जो सबके पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आप उसको virtually students को provide करके, जो remote areas में है, you can give them some hands on for those experiments. Visual aid मिलता है, एक 2D 3D animations के through आप complex concepts को समझा सकते हो, हर चीज blackboard पे समझाने की जगह. And now with the introduction of AR and VR, आप तो उनको immersive experience भी दे सकते हो, right? Ensure student safety. कुछ chemical engineering में कुछ ऐसे experiments होते हैं जिसमें there is a chances of कि मतलब कोई मिस हैपनिंग हो सकती है. तो अगर स्टूडेंट ने पहले वर्चुअली उसको परफॉर्म किया होगा, सो दैट वे द स्टूडेंट सेफ्टी इज आल्सो एंश्योर्ड, राइट? कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसने गलत कनेक्शंस लगा दिए या केमिकल लैब में कुछ हो गया, सो वर्चुअली अगर उसने पहले किया हुआ तो दैट इज गोइंग टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी. एंगेजिंग द लर्नर्स. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेक्चर आई वाज वेरी इंट्रीग्ड टू मैंने आज तक कभी भी रजिस्टर के अंदर जो बार कोडिंग कलर कोडिंग होती है, इफ एनीबॉडी इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ कलर कोडिंग होती है, उससे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है. सो वो मैंने आज सुबह किया, तो इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि एज ए लर्नर ऑल्सो आई वाज वेरी एंगेज कि अच्छा ऐसे निकलती है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू. सो दैट इज गोइंग टू एंगेज द लर्नर्स. इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, गलत वैल्यू आई है तो आपको गलत मिल जाएगी, फिजिकल के अंदर वो आपको नहीं मिल सकता. फीडबैक से ये भी कहूंगी, यूजुअली जो इक्विपमेंट है हमारी लैब्स के अंदर वो लिमिटेड नंबर में होता है और बच्चे होते हैं ज्यादा, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ना. ग्रुप्स में भी क्या होगा कि ग्रुप में एक या दो बच्चा ही एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा होगा, है ना, किसी दूसरे को तो चांस मिलेगा नहीं. इवन इफ ही वांट्स टू डू, स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता ना, तो किसी को टाइम भी लगता है. तो इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअली हर कोई अपना अपना एक्सपेरिमेंट रन करके देख सकता है, ग्रुप्स में जाने की जरूरत नहीं है. इंस्टेंट फीडबैक का है कि अगर आपने गलत भी कर दिया और फिर आपको टीचर कह देती है इक्विपमेंट से हटो ना, द सेकंड ग्रुप हैज टू कम, राइट? तो इसके अंदर इंस्टेंट फीडबैक मिलकर आप दोबारा उसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट. Learning flexibility, of course, and they are affordable alternatives to physical labs. दो तरीके की वर्चुअल लैब्स होती हैं. सिमुलेशन बेस्ड वर्चुअल लैब जो हम आज डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, जिसके अंदर हर चीज जो भी एक्सपेरिमेंट प्लेस है, दे हैव बीन मॉडल्ड इन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जब मॉडलिंग होगी ऑफ कोर्स देयर विल बी सम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. सिमुलेशन ज्यादातर कैरी आउट करी जाएंगी हाई एंड सर्वर पे, कहीं तो उनको होस्ट किया गया है जहां से वो सिमुलेशन रन कर रही है. रिजल्ट्स जो है सिर्फ आपको फ्रंट एंड पे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट हो जाएगा. सिमुलेशन बेस्ड वर्चुअल लैब्स आर ऑफ कोर्स स्केलेबल एंड केटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स. दूसरी तरीके की वर्चुअल लैब होती है रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब. ये होती है कि सपोज आपने वर्चुअली तो उस एक्सपेरिमेंट को रन कर लिया है ना, लेकिन अब आपको एक्चुअल इक्विपमेंट पे ही उसको रन करना है. फॉर पीपल who are doing their research work, तो वो वर्चुअल पे यूजुअली करके नहीं दिखा सकते, पर्टिकुलरली फ्रॉम मैकेनिकल सिविल में अगर कुछ है वर्चुअल लैब पे इंप्लीमेंट करके वो नहीं दिखा सकते, तो उन्हें कोई ऐसी इक्विपमेंट चाहिए जो सपोज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में ही अवेलेबल है. सो दोज आर कॉल्ड रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब्स, जहां पे क्या होगा, आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है आप उनको बता दो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर वो आपको उस लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आपको वो लैब दे देंगे. ठीक है, ईदर यू गो देयर देन तो इट इज अ फिजिकल मोड, but if you are telling them okay this is what I want to run, you submit it on their portal or their mail, तो वो उस एक्सपेरिमेंट को रन करके एक्चुअल मशीन पे दे आर गोइंग टू एक्चुअली कम्युनिकेट द रिजल्ट्स बैक टू यू. इस तरीके का रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब, आई अटेंडेड ज्ञान कोर्स ऑन आईओटी इन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली. वहां पे इस तरीके की रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब है. आई एम श्योर कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके की होगी. वहां पे सेंसर फैब्रिकेशन पे बेसिकली उनके पास एक इस तरीके की वर्चुअल लैब थी, जहाँ पे आप क्या फैब्रिकेट करना चाहते हो उन्हें दे दो
and then the time slots are booked. उस time पे आपका experiment वो run करके they will give you the results. Nominal fees involved in such kind of virtual remote triggered virtual labs, but you can always talk to them and negotiate to them. ठीक है? So simulation based virtual labs is the focus for today's topic. So virtual labs in India, we have two types of virtual labs in India. One is the O labs, जो first O labs है, that is for students from for school education. ठीक है, वो भी हम अभी visit करेंगे. And second is the virtual labs, that is for UG, PG and other multidisciplinary areas. Let's go to O labs first. Right. So basically, this is O labs. It has all the digital content which has been mapped to the school syllabus. ठीक है, and as you can see school के अंदर भी AR VR के ऊपर यहाँ पे ये दिखा रहे हैं. Although मैंने इसको जब click किया, that is in the preparation phase, but they will be coming up with lab in AR VR also. ठीक है, so let's go to the physics lab. Let's see यहाँ पे क्या क्या available है हमारे पास. यहाँ पे class 12 की virtual lab के experiments available हैं. Suppose Ohm's law and resistance है, potentiometer है, concave mirror है, refractive index है, spectrometer है prism का. इस तरीके से if you can see they have put in the theory first. This is we are talking about O labs. We have the theory. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ refractive index के बारे में बताया, prism के बारे में बताया. Then they have this procedure. How do you actually perform this? What are the materials required? What is the real lab procedure? Then you have the simulator. ठीक है, इस simulator में they say you can start the experiment. Once you start the experiment and you change this angle, right? You have this multiple refractions going on in this prism. Okay, this is how it is done. Angle of deviation is there, refractive index is there, everything is available. Okay, so this is how simulation happens. थोड़ा ज़्यादा detail में ये simulations will go into V labs जब हम जाएंगे करेंगे. Then what are the probable viva questions from this particular experiment? So this is actually going to help students कि इससे teacher क्या पूछ सकता है. Then of course we have the resources. What is the manual available and the feedback if you want to give on this particular experiment, तो वो feedback भी आप O labs को दे सकते हो if you want some change या कोई correction आपको लगती है. So likewise we have in physics, chemistry, bio, maths, we have even the language. We want to learn Sanskrit also. Classes 6, 7, 8 की Sanskrit is also available there. सारा कुछ आप सीख सकते हो यहाँ से. Simulator में if I directly go into the simulator, objective and everything is given here. ठीक है, if anybody is aware of the Sanskrit language, so this is how ekvachan, dvivachan, bahuvachan, everything is there. Only thing is there is need for learning interest या learning desire अगर अंदर है तो इस time पे इतने सारे initiatives हैं GOI के कि you can actually learn. So this was about O labs. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ school level का कुछ समझना है या students को समझाना है, so that way you can do. Coming on to the virtual labs. This is the website of virtual labs, which is an initiative of Ministry of Education under the National Mission on Education through ICT. ठीक है, के अंदर क्या है, what are the objectives? Website पे ही है. They want to provide remote access to simulation based labs, enthuse the students to conduct experiments, and they want to provide a complete learning management system through virtual labs. इन virtual labs का फायदा क्या है कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकती हैं आपकी LMS, जैसे कि Moodle जो आपको फर्स्ट डे करवाया गया था, उसके साथ अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी तो स्टूडेंट की असेसमेंट, इवैल्यूएशन और फीडबैक में बहुत ज्यादा इजी आपको रहेगा. राइट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. व्हाट आर द ब्रॉड एरियाज? इन एरियाज के अंदर वी हैव एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल and these are the participating institutes. All the IITs, most of the IITs. Then we have IIIT Hyderabad. We also have Amrita Vishwa Vidyapeeth, Jalbagh Educational Institute, College of Engineering Pune, NIT-K, etc. Right? So these are the participating institutes. And let's just go ahead and people from electronics and communication engineering who are in this course. As I click on electronics and communication, you can see there are various subjects. ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की लैब है and this here represents that it has been developed by IIT Roorkee. Then we have analog signals, networks and measurement, basic electronics lab by IIT Kharagpur, and so on. You can see from the basic EAEL to advanced like the digital logic design lab, which is allowing you to design logic gates and multiplexers and demultiplexers. वो सारे डेवलप किए गए हैं. ठीक है, सो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता दूंगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का. एक एक्सपेरिमेंट
आप मुझसे करवाइएगा कि ओके यू नो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन दिस. तो एज वी गो ऑन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लेबोरेटरी पे जब मैं क्लिक करती हूँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ पैनल हियर which is giving you the introduction of this virtual lab, the objective of this virtual lab, and the list of experiments. जैसे physical lab में भी हम क्या करते हैं, हम लोग एक paper पे you know either we write or we get it printed. These are the list of experiments that we want to perform in this lab. So इसी तरीके से virtual lab में भी वही हमने digitize किया है that these are the list of experiments. Maybe I can go on with the familiarization of the resistor first. This and the Ohm's law. Ohm's law of course सबको ही पता होता है, ये तो हमने स्कूल टाइम पे किया ही है. तो let's go to the first experiment and see how it is done. The other thing is the target audience, who are the people who can attend this, who can use this virtual lab. What is the course alignment? Course alignment is basically ये वाला जो experiments हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट के कौन से सिलेबस के साथ एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो दैट टेल्स यू द कोर्स अलाइनमेंट. एंड ऑफ कोर्स यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक. मूविंग टू द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वापस, फर्स्ट इज द फेमिलराइजेशन विद रजिस्टर. अगेन जो मैं आपसे बात कर रही थी, एम है, थियोरी है, प्री टेस्ट है, फिर प्रोसीजर क्या है करने का, फिर उसकी सिमुलेशन दी है, फिर पोस्ट टेस्ट है, रेफरेंसेस हैं, एंड कंट्रीब्यूटर्स एंड द फीडबैक. What is the aim? You want to understand the function and unit of resistor. We want to measure the value. We want to measure the tolerance and the types. जब थ्योरी में जाएंगे तो वो थ्योरी एक्सप्लेन किया यहाँ पे. What are the types of resistors? Who are not even from ECE. अगर आप खुद भी समझना चाहेंगे कि ये कैसे होता है, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ थ्योरी दे हैव प्रोवाइडेड. डायरेक्टली हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्री टेस्ट में. प्री टेस्ट में दे ऑलवेज हैव अ क्विज. कुछ छोटा सा 3-4 क्वेश्चंस का क्विज बना के रखा हुआ है कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता. सो मे बी हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कोई भी एक बता दीजिए इफ वी कैन डू दिस प्री टेस्ट टुगेदर, because this session is 50% by me and 50% I want interactions from you. What is the multiplier of orange color code resistor? किसी को पता है? Anybody can unmute. Is it 1 kilo ohm or 10 ohms, 10 kilo ohms or 1 G ohms, giga ohms? Electrical electronics. Anyone? Multiplier of orange color code resistor. I'm not sure. Maybe it is 10 to the power 3. yes, ma'am. 10 to the power 3. You mean C option, sir? 1K, sorry. I'm sorry. So 10 to the power 3. I'm sorry. Right. ठीक है. Can we go to the next question? We'll check whether it's right or not. Submit करने के बाद. What is the multiplier of blue color code resistor? C 1 mega ohm. 1 mega ohm. और भी है अंकुर सर के सिवाय, बिकॉज जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं तो काफी लोग थे. What is the tolerance of gold color code resistor? Ma'am, it's B5. It's B5. Thank you so much. Let's submit the quiz. Thank you so much, participants. We passed the pre-test collectively. So let's go to the procedure. Okay, this is the procedure. 3 band resistor में first band का क्या मतलब है, second band का क्या मतलब है. Even from non-technical people, it's a very interesting topic. तो बस आप ये समझ लीजिए resistor के ऊपर. I'll just go ahead to the simulation directly. फिर हम देखते हैं. ये इस तरीके से इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दे हैव गिवन कि ब्लैक कलर अगर रजिस्टर पे है तो उसका जो फर्स्ट जो कोडिंग है दैट इज द डिजिट, देन वी हैव द मल्टीप्लायर और उसका टॉलरेंस क्या है. लेट्स गो टू द सिमुलेशन. चलो एक मैं करवा देती हूँ, एक आप बता दीजिएगा, दैट विल बी बेटर. जैसे ये रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर्स है. जो पहला कलर है, अगर इसमें कितने बैंड्स हैं अभी, 1 2 3 4 बैंड्स है ना, 4 बैंड्स है हमारे पास. तो लेट अस जस्ट, अगर अभी हमें नहीं समझ में आता तो एक बारी हम प्रोसीजर पे चले जाते हैं या थ्योरी पे चले जाते हैं, ताकि जो ईसी से नहीं है उनको पता चल जाए कि ये कर क्या रहे हैं, है ना. जैसे यहाँ पे आपके सामने जो ब्लैक डायग्राम में है, दैट इज द 4 बैंड कोड. ठीक है, इसमें जो पहले 2 बैंड है वो डिजिट देंगे, जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर देगा और चौथा जो है वो टॉलरेंस देगा. राइट. तो इसके अंदर भी जो आपका येलो और वायलेट है क्या रहेंगे, आपके डिजिट रहेंगे. जो तीसरा है गोल्डन, इज इट ऑरेंज, या इट्स ऑरेंज, वो देगा आपका मल्टीप्लायर. और जो लास्ट में है गोल्डन, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो डायग्राम रीड ही करना है, दैट इज यहाँ से आपको ये वाली चीज, दैट इज द टॉलरेंस. ठीक है, सो दिस इज अ 4 बैंड रेजिस्टर. इस तरीके से स्टूडेंट को बताना है कि यहाँ पे इस पूरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी और टॉलरेंस क्या होगा. यहाँ से आप यूनिट को भी चूज कर सकते हो. सो एक मैं बता देती हूँ, चलो. येलो एंड वायलेट, येलो का डिजिट क्या है 4 एंड वायलेट क्या है 7, राइट. सो 4 and 7,
सो जो डिजिट्स है वो 4 and 7 आएगा, ठीक है। जो थर्ड आपका रेजिस्ट बैंड है दैट इज शोइंग यू मल्टीप्लायर, सो दिस विल बी 47। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है ऑरेंज की, ऊपर से देख लो, ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है 10⁻³ दैट मीन्स किलो ओम्स, आई कैन डायरेक्टली चूज किलो ओम्स, राइट। एंड व्हाट इज द टॉलरेंस, लास्ट गोल्ड वाला क्या है, दैट इज 5, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द टॉलरेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज 5। इस तरीके से स्टूडेंट कैन डू, एंड इफ वी चेक वी हैव द करेक्ट रेजिस्टेंस, करेक्ट यूनिट एंड करेक्ट टॉलरेंस वैल्यू। मतलब सपोज इस 47 को मैं गलती से ओम भी छोड़ देती और चेक करती तो वो ये बता देता है रेजिस्टेंस यू हैव टोल्ड करेक्टली, टॉलरेंस इज आल्सो करेक्ट बट द यूनिट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट टेल द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। Can we go to simulation 2? ऐसा नहीं है एक ही है, we have multiple simulations. Now again this is a 4 band resistor. Now I want all of you to just tell me what will be the value of the resistance. I can just zoom out this a bit so that आपको पूरा टेबल नजर आ जाए। तो पहले ग्रीन का पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन है वो भी आंसर ना बताएं प्लीज, चैट बॉक्स में लिख दें ताकि आंसर सबको, मतलब जो यहाँ पे अवेलेबल है उन्हें ना पता चले। अब अगर आपने कर लिया तो अपने पास रखो, हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। So this is again a 4 band resistor wherein the first two will be the right, correct. Online chat box में बता दो कि समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इवन नॉन टेक्निकल पीपल, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन भी वी हैव नॉट एवरीबडी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो दे आर ट्राइंग हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू। And I think we should appreciate how this all has been programmed to allow virtual lab laboratory experience to the students. कोई तो बता दो online. Let me just go to the chat box. Okay, so one of them have written. Okay, I'll just communicate in English, sir. Rashmi ma'am is saying it is 5, but what 5, ma'am? 1 kilo ohms Kavinder sir is saying. ये पिछले आंसर्स है ना, आई थिंक 5 एंड वो 1 किलो ओम। 1 किलो ओम तो नहीं था, पीछे 47 था। कोई भी अब अनम्यूट करके चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा। सीमा मैम इज सेइंग 520 किलो ओम। ओके, 520 किलो ओम्स एंड प्लस माइनस 10%। लेट्स चेक। It's not correct. 5.2 ohm with 10% tolerance. 5. It would be 52. Ma'am is saying 52. Third one is golden है। 10.10 minus 1 है ना, तो 5.2 हो जाएगा। So you want to say कि वो 5.2 है। 5.2 kilo ohms ही, and tolerance ohms, okay, and tolerance is 10. Tolerance 10. Correct. So one of the participants from the Nitter Chandigarh Center has given the correct answer. 5 into 10 raised to 5. It is 52. Hello. Yes. 520 kilo ohm plus minus 10%. कलर में दिक्कत हो रही है। Okay, sir, 520 kilo ohm plus minus 10%. Sir, if I put 520 and I put kilo ohms and I check, it's giving incorrect. Sir, जो third band है ना, that is gold, not yellow. वो देख, मैं अब zoom in कर देती हूँ थोड़ा सा। Can you see, sir? ये gold है, gold वाली कोडिंग लेनी है आपको। If you could just correct your answer now, sir. गोल्ड वाली कोडिंग लेनी है आपको, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया ये वाली, this one, sir. Try once again, sir. Maybe then you will get the correct answer, because the correct answer is 5.2 ohms with plus minus 10. ठीक है, so this was the familiarization with the resistor, and this is how they have coded it into the virtual lab. Likewise, we have other simulations also, multiple color bands हैं यहाँ पे, जैसे we have 5 bands, then we have again 5 bands, and then again 5 bands. 5 bands के अंदर likewise first 3 will be the digits, 4th will be the multiplier, and 5th will be the tolerance. So that's how if you want to make the students familiarize with the resistor, पहले आप virtual labs करवा सकते हैं या remote areas में है तो इस तरीके से भी बच्चा समझ सकता है, और कल को उसके सामने real resistor आएगा तो वो आराम से calculate कर सकता है, ठीक है। So this was one of the experiment which was available in the basic electronics lab of IIT Kharagpur. Maybe we can move on to the Ohm's law now. Ohm's law क्या कहता है, कोई भी एक participant online से बताए मुझे कि Ohm's law क्या होता है।
Ma'am, current is directly proportional to the applied voltage. Seema ma'am, thoda a bit louder. Ma'am, current is directly proportional to the applied voltage. Current is directly V is equal to IR. yes, correct. But to the voltage applied, right? V is directly proportional to I. Okay, everybody in line with me, because even if people are from applied science, No. Actually, I is proportional to V. Okay, sir. I is Because the V is independent quantity and I is dependent quantity. okay, sir. So I is directly proportional to V. This is what you're saying? Yes, it is true. Okay, okay. So maybe we can look at the virtual lab of Ohm's law. Again, we have the aim of the experiment. We have the theory. Pre-test again. यहाँ पे we can tell what is the value of the resistor in ohms. Suppose even if I take just random values, let's not take you through this test again and again. Resistance and current are directly proportional. ये तो अभी बात हो गई. If the voltage is given in the circuit. So I'm sorry. Inversely proportional. Right, correct. If the voltage is given in the circuit is cut into half. चलो इसका बता दो फिर calculate करके. 30 milliampere. Let's submit. Correct. This is also correct, and this is the answer for this one. 2.7 kilo ohm. So basically एक knowledge testing आपकी experiment करने से पहले. Let's go to the simulation. यहाँ पे जब हम सिमुलेशन पे जाते हैं तो ओम्स लॉ आपको सर्किट ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस को सीरीज में डालना है. इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. बेसिक ओम्स लॉ पे आई हैव क्लिक्ड राइट नाउ द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट सर्किट मिल गया. ठीक है, एज यू कैन आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द जीयूआई जो उन्होंने प्रोवाइड किया. इसी तरीके से हमारी लैब्स में भी अवेलेबल होता है ना. तो अभी हमें जो डीसी वोल्टेज है उसको चेंज करना है ना. तो यहाँ से जो कंट्रोल से जब मैं इसको चेंज करूंगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा इधर वाली साइड में, यहाँ बीच में ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज होगी. सॉरी नीचे डीसी वोल्ट, आई एम सॉरी, डीसी वोल्ट चेंज होगा. ऊपर भी वही होएगा बिकॉज वो पैरेलल में है उसके साथ, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी द सेम. ठीक है, इस तरीके से इट इज चेंजिंग, राइट. एंड रेजिस्टेंस जब मैं चेंज करूंगी वो कहेगा रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है. कांस्टेंट रखेंगे रेजिस्टर को बिकॉज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज इक्वल टू आई आर हो जाता है, तो आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वहां पे है ना. सो वी जस्ट मैनिपुलेट दी वोल्टेज. उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस की जो एक फिक्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली एक करंट की वैल्यू आ गई आपकी एम्पियर्स में यहाँ पे है ना. इसको बार बार चेंज नहीं करना है. जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ ना वो बोल रहा है कीप द रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट. तो इसको अगर मैं किलो ओम्स में सपोज लेट्स से आई कीप इट टू, थोड़ा इजी वैल्यू रखते हैं, 10 ओम्स पे 9 ओम्स पे रख लेते हैं, तो एम्पियर्स में मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है. इसको मैं टेबल में भी ऐड कर सकती हूँ. जब मैंने ऐड टू टेबल किया I have this at the first serial number. तो multiple readings if you want to take you can do. उन multiple readings को मैं बाद में if I want to plot it onto a graph, यहाँ पे नीचे आपके पास graph का option भी available है. ठीक है, and that you can directly print. तो student से अगर आपको assignment करवानी है, plot the VI characteristics, and of course जो plot बनेगा that will be a which line? Can anybody tell? V और I के बीच में जो बनेगा. In the meantime I'll correct ma'am. I'll change the DC voltage again I'll change some DC voltage. Let's take about 5 readings. थोड़ा और change करेंगे. Change the DC voltage, add to table, and we have now 5 readings. ठीक है, now these 5 readings पे जब मैं plot पे click करूंगी I will have the plot, and of course जैसे मैम ने यहाँ बताया it will be a straight line because I and V are directly proportional to each other. तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जो है वो वर्चुअल लैब में you have performed. And if you want to clear all the data you just put on clear and दोबारा से सारा का सारा जो apparatus है वो reset हो जाएगा. ठीक है, any number of time कहीं से भी आप इसको access करना चाहे that you can do. So this is how we could do Ohm's law. ठीक है, coming on to any lab you want to अगर आपका खुद भी अगर आपको लगता है कि let's explore this lab तो आप बता सकते हैं. I just wanted to tell you कि इस तरीके से we have the simulations available. Maybe we can go on to this digital logic design lab, logic gates. यहाँ पे भी इसी तरीके से देखो बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं मल्टीप्लेक्सर का डिजाइन सर्किट्स के साथ. ये थोड़ा डिफरेंट है रादर सिमुलेशन से हटके, ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही हूँ. ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक क्विज टाइप में है, ये नॉट कि आप सिमुलेट कर रहे हो एक्चुअली में, इट इज अ क्विज. तो जब मैं क्विज को स्टार्ट करती हूँ तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है which basic logic gate will you choose on inputs of a 2:1 multiplexer. So you have to check select one of these and check your answer. Anybody can try and give me an answer for this. Is it which gate ma'am? AND gate?
एंड गेट कर रही हूँ तो देखो यहाँ एंड गेट बन के आ गया, जोर पे टच किया, क्लिक किया तो जोर, और है तो और, नॉर, नॉट, नैंड, एंड गेट आएगा। एक्सॉर करना है, बेसिक लॉजिक गेट विल यू चूज, ये भी है क्वेश्चन में है बेसिक लॉजिक गेट। तो एंड करो, एंड करो, तो इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं इनकरेक्ट करती, सपोज आई क्लिक ऑन नॉर, गुड, एक सेकेंड, इसका कोई गलत आंसर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर वो गलत बताएगा। वन लाइन है तो इसका तो नॉट तो सही हो जाएगा ना आंसर, नहीं बनेगा, सिंगल इनपुट है ना, हाँ नहीं बनेगा। नॉट तो सही आंसर होगा ना, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है ना। नॉट पे क्लिक करने, क्लिक मैंने कर दिया ना, आ गया ना यहाँ पे नॉट। दो सेलेक्ट लाइन होना चाहिए ना, 2:1 गलत आएगा इसका आंसर, चेक करो, चेक करो, तो ग्रीन आ गया, तो सही है। नहीं सही आ रहा है। नहीं नहीं, गलत बताओ, अब इसका आंसर गलत बताओ, विच बेसिक लॉजिक गेट, और इसको नॉट कर देते हैं, नॉट का तो इनपुट होता ही नहीं ना, दो, नॉट तो इज वन ना, सिंगल इनपुट वही तो किया था मैं, वही किया सही आ रहा था। रॉन्ग गेट सिलेक्टेड, आ गया, अब आ गया ना रॉन्ग गेट सिलेक्टेड, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, when we are clicking on NOR, okay, got it. Which basic logic gate will you choose on an output to 2:1 multiplexer? NOR, तो NOR के लिए दो इनपुट अपने आप आ रहे हैं, आपको खुद ही बताना है कि कौन सा, अगर एंड कर रही हूँ तो दो है, सिंगल आ रहा है नहीं, अगर मैं नॉट पे क्लिक करती हूँ, देखो सिंगल हो गया अपने आप, नॉट पे आई क्लिक, सिंबल है ना, वो पर वो आ रहा है। हाँ जी, कौन सा आंसर होएगा वो यही कह रहा है ना, आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो आपके हिसाब से एंड था ना आंसर, इसका तो एंड ही था ना आंसर, कि नहीं था? And is the correct answer. एंड इज द करेक्ट आंसर, Yes. ये तो रॉन्ग बोल रहा है। And is the correct answer. और इज द करेक्ट आंसर, आपको क्यों लगता है सर और इज द करेक्ट आंसर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया ना, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, योर स्कोर इज टू, तीन ही क्वेश्चन थे इस लैब के अंदर, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिमुलेटर, देख लेते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज, एक बार कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स टू गेट ऑरेंज जूस? ऑरेंज 5 101 select inputs, so S2 will be 1, S1 will be, इसको select नहीं करना है ना, and S0, right? check कर bingo, so it says it's the correct answer. Can we go to the next question? So this is how we can actually do, this is a multiplexer based lab, ठीक है? Okay, so maybe we can go on to, this was about the ECE lab, हर सब्जेक्ट के ऐसे ही यहाँ पे लैब है, maybe we can go to the home button. Let's go to the computer science and engineering lab. अब कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर लैब, सारी लैब्स अवेलेबल है। और आई थिंक मोर देन, यहाँ पे जिस तरीके से हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को के मैप करवाते हैं, है ना, सो लेट्स चेक के मैप को एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन एज यू कैन सी, एक ही फॉर्मेट है इनका, एम, थ्योरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, पोस्ट टेस्ट। इफ आई गो टू द सिमुलेशन पार्ट, हियर वी गो टू द सिमुलेशन पार्ट, एंड थोड़ा इसको एनलार्ज करने के लिए वी कैन गो टू द नेक्स्ट टैब। या तो दिस इज अ के मैप सिमुलेटर। क्या होता है, यूजुअली हम इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास कुछ होते हैं, डोंट केयर कंडीशंस होती हैं, दिस इज फॉर ईसी, ईई, सीएसई, एवरी बैकग्राउंड कैन अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू हाइड द रिजल्ट और नॉट। ठीक है, यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इस पे टच करूंगी तो टू 1, ठीक है, आउटपुट में मेरे पास y नीचे चेंज होता जाएगा। अभी मैंने डोंट केयर को नो किया हुआ है तो डोंट केयर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इफ आई वांट टू चेंज इट टू 1, आई विल क्लिक वंस, आई वांट टू चेंज इट टू 0, आई विल अगेन क्लिक। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर के मैप का जो वो आपका पर्टिकुलर ग्रिड वैल्यू जो है उसको आई एम चेंजिंग, राइट। अगर मैं इन चारों को कर देती हूँ तो आई विल हैव दिस 2 वैल्यूज। अगर मैं इसको भी कर देती हूँ तो इस तरीके से वो ग्रुपिंग अपने आप आपको करके इट इज गिविंग यू द आंसर नीचे। डन। इसको रीसेट करना है तो रीसेट कर दो। अगर कोई भी रैंडम एग्जांपल लेना है तो वी कैन जस्ट गो टू अ रैंडम एग्जांपल। इस तरीके से दे हैव गिवन यू द आउटपुट। Likewise, you can go to 5 variables, you can go to 6, 7, 8 variables, and 2 variables also, and 3 variables also. ठीक है। If I want a don't care condition, click on yes. अब जब मैं yes पे क्लिक करूंगी and I go to this particular grid value, एक बार ही x आ गया, x is basically don't care, फिर 0 भी आ गया, फिर 1 भी आ गया। आई थिंक सिमुलेशन लाइक दीज अगर हम क्लासरूम में यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड दे विल रियली हेल्प।
So this was an example of K-map simulation from one of the virtual labs in computer science. ठीक है? Then there is another computer programming के ऊपर usually हमारे पास बहुत सारी labs available हैं, बहुत सारी programming platforms ऐसे available हैं जिसमें आपको instant output मिल जाता है. Here also we have from computer programming, we have arrays, we have structures, pointers, recursion, जो भी हम अपने curriculum में डालते हैं. So suppose arrays, we have two types of arrays, 1D, 2D, and if you can see, इन्होंने हर ऑप्शन रखा है. array size अगर मैं suppose 8 देती हूँ तो उन 8 को आपने manually enter करना है कि generate करनी है random value. So that also is available. And you want to start, यहाँ पे step by step execution भी आ गई और इस तरीके से उसने random values ले ली. And then it has, if you want sorted कौन सा है, कौन से element sorted हैं, जो blue में है वो unsorted है, that also it is giving you an analysis. Done? ठीक है? So this is how in computer programming lab is there. इसको अब आपको अपने लेवल पे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है. क्रिएटिव डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, दैट इज आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. इसके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ना यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग ऑफ टीवी रिमोट कंट्रोल पैनल है. इसमें जाके ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लिक हियर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने खाली पैनल दे दिया है रिमोट कंट्रोल का. अब आपको यहाँ से टूल बॉक्स में से एक एक चीज ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा का पूरा एक रिमोट बनाना है. ठीक है, और अगर आपको बीच में हेल्प भी चाहिए तो यू कैन गेट इवैल्यूएट डिजाइन भी कर सकते हो, क्लियर पैनल भी कर सकते हो एंड सैंपल लेआउट भी देख सकते हो. इस तरीके से आपको बनाना है. इसके ऊपर होवर करते हैं तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टीवी रिमोट कंट्रोल पैनल. सो लाइकवाइज जिसके सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड है दैट वी कैन डू. कमिंग ऑन टू द क्रिप्टोग्राफी लैब. In cryptography lab, we have the substitution ciphers, encryption and decryption algorithms, hash algorithms. इसके अंदर if I go to the Diffie-Hellman key exchange, ठीक है, इसकी simulation में if I go, basically Diffie-Hellman key exchange इसको जो from non-technical background, it is a key establishment protocol जो हम computers में पढ़ते हैं. इसके अंदर 2 prime numbers को generate किया जाता है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक प्राइम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है, जो सबको पता होता है, और एक जनरेटर होता है. ठीक है, तो वी हैव, ये अपने आप कर रहा है वो कंप्यूटर बैकएंड पे क्लिक. नाउ इफ टू पीपल, एलिस इन द रिटन इन रेड एंड बॉब, दे वांट टू कम्युनिकेट, तो वो अपने लेवल पे कुछ कीज को जनरेट करते हैं और बिना ट्रांसफर किए एक दूसरे को एक की स्टैब्लिश हो जाती है. तो यहाँ पे मैंने जनरेट ए किया, देन जीए को कैलकुलेट किया, देन व्हेन आई क्लिक ऑन सेंड जीए टू बी, आप देखेंगे वहां पे रिसीव्ड में बॉब की साइड में दैट वैल्यू इज रिसीव्ड, है ना. लाइकवाइज बी भी यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करेगा. जस्ट आप इतना समझ लो कि ये बैकएंड पे खुद सब कुछ करके दे रहा है. जिनको ये नहीं भी पता कि डिफी-हेलमैन क्या होता है, जीबी जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वो उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. नाउ कैलकुलेट जीएबी, दिस इज बेसिकली शेयर्ड सीक्रेट होती है. ये दोनों को ना भेजनी पड़ती और ये दोनों अपने एंड पे कैलकुलेशन करते हैं. सो जीबीए एंड जीबी एंड बोथ ऑन एलिस एंड बॉब साइड इट्स द सेम. So basically this is one of the concept in computer science. Cryptography में Diffie-Hellman key exchange algorithm होता है. That also they have provided you in virtual labs. Likewise data structures में जो sorting, searching algorithms हैं, heaps हैं, heap sort, merge sort, ये सब कुछ हमारे पास available है. ठीक है, soft computing tools भी हैं हमारे पास यहाँ पे, Python programming का everything is there. कोई doubt है किसी को यहाँ पे अभी तक? I think it is pretty much clear. एक बार फिजिकल साइंसेस का देख लेते हैं, देन वी कैन टेक अप, आप जो बोलोगे देन वी विल रन दैट एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर वी हैव, लेट्स से कोई भी बता दो, एडवांस मैकेनिक्स वर्चुअल लैब में वी कैन गो एंड देन मे बी वी वांट टू कैलकुलेट दी. यस मैम, पंद्री मैम, यू वांट टू से समथिंग? ओके, Rajkumar sir is saying please show the thermal conductivity of liquid experiment in HMT lab. Where is this HMT lab? Sir, was it in electronics? Mechanical? One second. BIS mechanical. Okay. Let's go to, पहले जो सर कह रहे हैं वो देख लेते हैं. Mechanical में, sir, subject you wrote is HMT. Sorry sir. हीट, अच्छा, हीट मास ट्रांसफर, राइट. ऐसी तो यहाँ पे लैब का नाम नहीं है. आई थिंक इसमें सर इनमें से कौन सी लैब में जाना है सर? हीट एंड मास ट्रांसफर, गॉट इट सर, बट यहाँ पे तो नाम नहीं है वो. अच्छा, इट इज नॉट अवेलेबल हियर. सर वो वाला एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा अगर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कोर्स का बेसिक से कहीं ना कहीं पे तो होगा सर.
मे बी ये एक्सरसाइज आप अपने एंड पे कर सकते हैं, देन यू कैन शेयर इट विद अस. Okay, so Rajkumar sir has found it. Let me just go to this link. Yeah. So here is heat transfer by conduction जो इन्होंने शेयर किया है. ये रहा. This is the heat transfer by conduction. पूरा apparatus आपके सामने. I think यहाँ पे हमें play button पे click करना होगा. Time is running. और इसके अंदर क्या करना होगा सर? If you could just guide me, anyone from mechanical. मैं इसको reset कर रही हूँ. आप मुझे थोड़ा guide कीजिए. ये thermal conductivity apparatus है, which is 2 slab guarded hot plate. Again, we have some observation table here. Sir, unmute करके बता. Anyone from mechanical? How to proceed in this particular lab experiment? Otherwise, we will just go ahead and click on something. On कर दिया हमने यहाँ से. इसको अगर इधर करती हूँ तो value will change. So I click on this. Anyone from mechanical? इसकी value यहाँ तो change हो रही है ना? T1 की value. Okay, ma'am, change the variables. What are the variables? Is it the voltmeter? I switched it off. Again, it has restarted. I switch it on. हाँ सर, यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा. इधर क्लिकेबल नहीं है ये. होगा तो कुछ यहीं से. इसको कहाँ करते थे? जहाँ पे T1 है वहाँ पे arrow साइड में. इस पे मैं क्लिक किया. T1 पे एरो साइड में. सर कौन सी लाइन? थोड़ा जोर से बताएंगे. 3 लाइन्स. 3 लाइन्स. इधर. ओह ओके. यस करेक्ट सर. आई फॉरगॉट टू. ठीक है. यहाँ पे अगर मैं डायमीटर ऑफ द मटेरियल चेंज करूँ, ये कह रहे हैं ना सर आप? लेट मी जस्ट स्टॉप द सिमुलेशन. आई थिंक सिमुलेशन चल रही है तो वो वैल्यू चेंज नहीं करने दे रहा. अब आई कैन गो रीसेट. नाउ आई कैन. यस, नाउ आई कैन चेंज. थैंक यू सो मच सर. तो आई थिंक इस तरीके से करके कुछ ऐसे ही करना है सर. 3 वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके पावर ऑन. If I show the result. So this is the thermal conductivity. Sir, is it correct? जिन्होंने मेरे को हेल्प किया इस एक्सपेरिमेंट में. ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं इसको थर्मल कंडक्टिविटी को. And it also saying show the cross section. So we have the cross section also of this particular material. So likewise we have multiple options. ठीक है. और इसके अंदर labs, which lab was missing? Mechanical we looked into. और इसके अंदर एक ये ऑप्शन भी है कि जब आप सिलेबस मैपिंग पे क्लिक करते हो ना, तो कुछ लैब्स जो न्यू है वो तो किसी सिलेबस से मैप नहीं हो रही हैं, बट सम ऑफ देम एक्चुअली गेट मैप टू सम ऑफ द सिलेबस. जैसे ये FAB लैब है फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड. इट इज फ्रॉम कुरुक्षेत्र, MDU. दीज आर द यूनिवर्सिटीज जिनके सिलेबस के साथ ये डायरेक्टली मैप करती हैं. So some of them are mapped, some of them are not mapped. That you can also check. And if you click on the reference book, sometimes they also provide you the reference book for that particular material. I think FAB is a basic lab, so uska reference material. Yes, we have a book in this particular lab. इसके अंदर फिजिकल साइंसेस के अंदर ज्यादातर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अमृता विश्व विद्यापीठ की तरफ से है. एंड इसके अंदर वी कैन जस्ट हैव एक्सपेरिमेंट ऑफ अ वेरी नाइस 2D एनिमेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव डन. जो अमृता विश्व विद्यापीठ पे जितनी भी वर्चुअल लैब होस्टेड है ना, उसमें सिर्फ आपको एक लॉगिन बनाना होता है. तो इट इज नॉट चार्जेबल, बट जस्ट यू हैव टू पुट इन अ लॉगिन. सो आई विल जस्ट लॉग इन इनटू माय अकाउंट. जस्ट लॉग इन किया. एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द न्यूटन सेकंड लॉ. तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है सरफेस का वो चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज दी हैंगिंग वेट. काट का वेट चेंज कर सकते हो. पॉइंटर पोजीशन यू कैन चेंज. एंड देन यू कैन स्टार्ट दी सिमुलेशन. तो इस तरीके से you can understand how the simulation went. And if we want to show the result, this is the result, that the time taken to reach the pointer क्या था, pointer distance क्या था, and what was the acceleration. I hope everybody is aware of Newton's second law, that force, I think force is equal to mass into acceleration. F is equal to m into a. That is the. ठीक है.
So this is how you can perform this very interesting Newton's second law of motion. अमृता विश्व विद्यापीठ के ऊपर ये वाली वर्चुअल लैब होस्टेड है. इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि कुछ कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम्स के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का जावा नहीं डला होता है ना. समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का उसको बैकएंड पे सॉफ्टवेयर चाहिए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी वर्चुअल लैब वाला जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक चीज प्रोवाइड किया दैट डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना. दे हैव प्रोवाइडिंग विद दिस डॉक्यूमेंट वेयरइन आप एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर इनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बंडल इन्होंने बना के दिया है. उसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट रन करेंगे. ये इन्होंने पूरा यहाँ पे एक मैनुअल बना के दिया है कि कई बार क्या होता है आपके सिस्टम्स बहुत ज्यादा पुराने होते हैं, उसमें जावा अपडेटेड नहीं है, लेकिन इन सिमुलेशंस को बैकएंड पे रन करने के लिए सम सॉफ्टवेयर लाइक यहाँ पे इन्होंने नॉट जस्ट जावा, दे वांट सम अडोब फ्लैश प्लगइन और जावा 3D और आईएसटी प्लगइन. तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर्स उन्होंने कस्टमाइज वर्चुअल बॉक्स इमेज आपको प्रोवाइड किया. कुछ नहीं चाहिए, बस आपको वर्चुअल बॉक्स डालना है और उनकी जो इमेज प्रोवाइडेड है, जो OVA फाइल है बेसिकली, उसको आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर. सो लाइक देन आपको फिर कुछ भी अलग से जो थर्ड पार्टीज हैं वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू सबमिट द फीडबैक ऑफ एनी लैब, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो. असेसमेंट आल्सो यू कैन गिव एनी एक्स्ट्रा FAQs you have, you can just go to these labs. One of the experiment that I wanted to show you was from the biotechnology. Biotechnology में in fact they have this very interesting immunology virtual lab. इसके अंदर suppose you want to the students to learn how do you collect the serum from blood, right? इसकी सिमुलेशन अब कैसे करवाएंगे, बिकॉज इसमें तो ह्यूमन एंटिटी इन्वॉल्व है. तो इसके लिए उन्होंने कैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे, दे हैव एक्चुअली जब भी आप किसी उस पर क्लिक कर होवर करेंगे ना कंटिन्यू, एक एक करके वो एक एक अपरेटस को बताएगा. तो इस तरीके से धीरे धीरे, नाउ दिस कैनॉट बी एक्चुअली इंटरैक्टिव बिकॉज इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है. ये पूरा धीरे धीरे पूरी सिमुलेशन करके आपको एक एक अपरेटस के बारे में बताएगा एंड हाउ कैन यू एक्चुअली perform this immunology test. वो आप कर सकते हो. So I think this is all from my side. Okay, so regarding this, ये जैसे यहाँ पे virtual labs हो रहा है, इस तरीके से syringe को उठाना है, right? You have to put in an alcohol. सारा स्टेप उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये तो था कि अब इसको अगर इमर्सिव बनाना हो तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं. लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग. तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अगर इसको इमर्सिव बनाना है, तो VR के अंदर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं. VR के अंदर ये सारे, या AR के अंदर ये सारा जो है हम 3D में मॉडल कर दें, और वंस द स्टूडेंट इज वेयरिंग दैट VR डिवाइस, उसके बाद उसके हाथ में जो कंट्रोलर्स होंगे वो एक एक करके एक एक चीज को उठाए, वो उसके साथ पूरा मतलब इमर्सिवली लर्न करे. सो दैट इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कि ये वर्चुअल लैब्स जितनी भी अभी आपने देखी, उनको AR और VR के साथ कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बोथ इन AR एंड VR. एक और न्यू टेक्नोलॉजी है जो विच इज कमिंग अप, विच इज कॉल्ड द डिजिटल ट्विन. डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली क्या है, ट्विन का मतलब होता है डुप्लीकेट, डिजिटल का मतलब ऑफ कोर्स इट इज इन द जीरोस एंड वन फॉर्म, प्रोग्रामेबल है. तो सपोज आई वांट टू क्रिएट अ डिजिटल ट्विन ऑफ माय अपरेटस. ठीक है, कोई भी अपरेटस आप ले लीजिए. सपोज एक IoT नेटवर्क का मुझे डिजिटल ट्विन बनाना है ना, तो उसमें मैं क्या करूंगी, उसका पहले एक 3D मॉडल बनाऊंगी जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है. ठीक है, एग्जिस्टिंग मेरा जो एक्चुअल में IoT मॉडल है उसका मैंने एक 3D मॉडल बनाया. फिर जो रीडिंग्स मेरा वो IoT नेटवर्क ले रहा है, वो मैं सेंसर्स के थ्रू क्लाउड पे भेजूं, और वो क्लाउड से फिर मेरा इंटीग्रेट होके मेरे डिजिटल मॉडल में नजर आए. तो आई एम जस्ट राइटिंग द टेक्नोलॉजी. मैं बस इसका सिर्फ आपको एक हिंट दे के छोड़ना चाहती हूँ. डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, इट विल बी अ कल्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज. AR VR भी आएगा, उसके अंदर IoT भी आएगा, सेंसर्स भी आएंगे, मॉडलिंग भी आएगी. तो दिस इज वन ऑफ दी technology which is upcoming. और AR VR तो है ही है for immersive learning experience. So this was the virtual lab जो मतलब इंडिया में जो 2 virtual labs चल रही हैं, जो मैंने वर्ल्ड की जो फ्री लैब्स है, आई विल जस्ट गिव यू द शो यू इन द स्लाइड. इनको आप अपने अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दीज आर द वर्चुअल लैब्स व्हिच आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड. इसके अंदर भी आप अपने हिसाब से मतलब PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशन है, प्रैक्सी लैब्स है. प्रैक्सी लैब्स को मैंने एक्सप्लोर किया था, वो भी काफी अच्छी वर्चुअल लैब है. ये सारी जितनी भी हैं, दीज आर ऑल वर्चुअल लैब्स. टिंकरकैड में तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करते हैं, वो भी एक तरीके का वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म है. देन वी हैव सर्किट लैब, वी हैव पार्टसिम, ऑनलाइन GDP, JS Fiddle, JDoodle. तो ये सारी जो है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई मतलब इनको इंटीग्रेट किया एंड देन दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. So इसमें if you have any feedback on this session or any questions you have, you can just let me know. These are all the virtual labs in the world. So on your end, you can just explore this virtual lab platform provided by the Government of India for relative to your subject.